Everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we'll be doing PSM. So first of all, we have annual growth rate. So simple formula, birth rate minus death rate, but we have to divide it by 10. Okay, so isi classification is slow, moderate, rapid, and very rapid. Moderate, India comes in moderate. India का है 0.9%. So slow is less than half, so 0.5%. Moderate is till 1%, then rapid till 2%, and more than that is very rapid. Now we have general fertility rate. We have various formulas. We have fertility rates and reproduction rate. The multiplier of everything is 1000. In fertility rate, we have live births. In reproduction rate, we have daughters. And in general fertility rate, we have in denominator women of reproductive age. But in total, we include age specific fertility rate. Similarly, in net reproduction rate, we include age specific mortality rate. Now, the best for fertility and complete family size is total fertility rate, which should be less than 2.1. Now, the best for family planning is net reproduction rate, which should be 1. Then we have operation and field investigation couple protection rate, which should be more than 60%. Then, till when should the birth and death be registered? It is 21 days. Then we have 3 types of census, SRS or DRS. Then we have census, then we have NFHS. In SRS, it is done 6 months or annually, and the latest one is NFH. So we'll see the latest one is in NFHS 5, which is done every 5 years, and census is done every 10 years. So what does simple registration system include? For birth, it has only crude birth rate. For death, it has 3: crude birth rate, infant mortality rate, and maternal mortality rate. Then we have sex ratio, which is 1020 in adults and 929 in children. Then we have potential support ratio. So we have another support ratio in which we include both children and old age in denominator. But in potential support, we have only old age in denominator. In India, it's 10. Target couple is who have completed the family and have one live child. Failure rate. For failure rate, the best thing is life table analysis, but what we mostly use is Pearl's index. In this, we have accidental pregnancy divided by months into 1200. For condom, it is 2 to 20, and it is least for implant less than 0.05. Then Billings method for family planning, it's thin cervical mucus due to ovulation. Then we also have Tirumala beads for people who are illiterate. Next, we have something related to the IUDs. First, we have Progesta Cert and Mirena. So, the Progesta Cert is the natural one. It is used for 1 year. Mirena is used for 5 years. So, firstly, we'll see Mirena. From 5, we'll see 52 mg. Then from 2, we'll see 20 microgram per day. And it has lowest failure rate or lowest side effects. Now we have Progesta Cert. So here we'll remember 38 mg and 65 microgram per day, and it has lowest expulsion rate. Then we have 2 IUDs, which is copper T380 and copper 375. So 380 is the surface area. The T is T-shaped and is used for 10 years, and 375 is used for 5 years. So the copper T380 is polyethylene white and white in color, and the another one is from mono nylon and blue green in color. Then if IUD is put after abortion, it can be put within 15 days. Then we have Mala N and D. It has same amount. The only thing is that the N is free and distributed by Government of India. The D is for ₹3 and distributed by ASHA. So we'll remember same unit in milligram. The estrogen component is 0.03 milligram and progesterone is
0.15 milligram. Then we have Netin, which is 200 mg 2 monthly. Then we have Saheli. So if there is a gap of 7 days, start new. Then we have IPIL, which is given by Asha, also known as Easy, and is LNG 0.15 mg. It is given within 72 hours of unprotected intercourse. Then the most common method of tubectomy done is Pomeroy's. Then we have Mission Parivar Vikas, which focus on new contraceptive methods. Then how much money is given to Asha for planned birth? So if the first birth is after 2 years of marriage, rupees 500. Second child is after 3 years of first, rupees 500. And if there is sterilization done after that, rupees 1000. Then we have Ayushman Yojana, which is for comprehensive family health care. Then we have the numbers in NRHM 2005. So firstly we have ASHA, then we have subcenter, PHC and CHC. For ASHA we have 1000, and then ये जो दो अलग अलग है, that is for rural, urban and rural. Then for this is all for rural, it is for hilly areas and plain areas. Then for subcenter we have 3000 and 5000. Then we have PHC 20,000 and 30,000. Then CHC we have 80,000 and 120,000. So how to remember that? Asha we have to remember 1. सबसे पहले आ रही है तो 1000. Then we'll go in the odd numbers, तो 3000 and 5000. Now इन दोनों में जो डिफरेंस है that was of 2, लेकिन हमें बढ़ाना है तो 20,000 और 20 के बाद आएगा 30 तो 30,000. Now CHC is we have to multiply by 4. P into 4 is C. तो 80 and 120. Asha की training is under Dakshata program, which is for 23 days and 5 sessions. पहला session is for 7 days and बाकी 4 are for 4 days each. Did NRHM, now we'll do NUHM. So Asha there was 1000. Here we have Usha till 2000. And in इसकी ट्रेनिंग होती है अंडर महिला आरोग्य समिति एंड उषा वॉज दक्षता. नाउ उषा के बाद here we have ANM, then PHC and CHC. तो वहाँ पे we had subcenter which was 3000 and 5000. Here we have 10,000. तो उधर का 5 का बिल्कुल डबल 10,000. देन PHC वहाँ पे कितना था 20 और 30. यहाँ पे उसका अगला ऑड नंबर 50,000. देन CHC वहाँ पे था 80 और 120. यहाँ पे 120 से ऑलमोस्ट डबल 250,000. और मेट्रो सिटीज़ में 5 लाख डबल. देन वी हैव डिलीवरीज के बेसिस पे सब सेंटर इज A एंड B. A में नहीं होती, B में होती है. PHC में वी हैव लेस देन 20 per month तो A and more than 20 per month तो B. Then CHC we have known FRU and referral unit, and in district hospital we have we need to remember our district hospital. Essential is 1 by 1000 and desirable is 2 per 1000. Then ICDS program comes under the Women and Child Committee, and इसमें we have आंगनबाड़ी. इसकी ट्रेनिंग होती है अंदर यू दिशा. So we saw आशा दक्षता, उषा महिला आरोग्य समिति, and आंगनबाड़ी is यू दिशा. And then there is Anganwadi supervisor. For 4 supervisor we have 1 CDPO, and we have to remember these numbers: 800, 25,000 and 1 lakh. Okay, then how much quantity of food or calories is given in Anganwadi? So for children we have 500, and around we will remember 15 gram protein. For children we have to minus 3, and for pregnant and lactating we have to add 3. So 15, what goes with 15 is 500. So for children 500, for pregnant we have 600. Now for malnourished we have to add something. So 800 kilocalories, and instead of 15 we have 20 gram protein. Then WHO recommends 1 per 1000, and in India it is 1 per 1445, almost 1500.
Then Saksham has training modules for doctors. Then we have some more formula like how to decide how much vaccine to keep. So live births are crude birth rate by 1000 into population. Okay, so expected pregnancy will be live birth plus 10% which will be wasted, and ANC registration should be more than 50% of the expected. Then vaccine, the dose required is live force multiplied by dose multiplied by the multiplication factor. For BCG it is 2, for MR it is 1.3, and for others it is 1.1. Next, what is the perinatal period? 28 weeks of PUG to day 7. Then we have कि सबका multiplier in every formula is 1000 in and except the MMR in which it is 1 lakh, and सभी का denominator is live birth, except in stillbirth we add stillbirth, and in perinatal mortality we add total births. So these are the current and the target values of 3 things which we will remember like in order. We have first we have neonate, then we have under 5, and then we have maternal mortality. ठीक है तो इन द पहले हम टारगेट वाला देखेंगे. वी हैव 1 2. ठीक है, 1 2 तो सीक्वेंस में ही आ रहा है नंबर, और भी फिर हम 2 पे जाएंगे तो 1 2 2 5. ठीक है, अंडर 5 का 5 लगा दिया, तो पहले भी 1 2, फिर हमने 2 लगाया और 5 अंडर 5 का लगा दिया. नाउ 2 + 5 is 7, तो 70. ना ओवरऑल डेवलपमेंट हम मतलब अंडर 5 पे देखते हैं, लेकिन बेस्ट इज IMR. UN बोलता है अंडर 5. करंट कितना है, तो करंट 1 2 की जगह हमने सिर्फ 2 लगाया करंट में, 2 0. ठीक है, देन अंडर 5 का 5 हमें करना है तो 3 + 2. ठीक है, 2 + 3 भी हो सकता था, 3 + 2 भी हो सकता था, लेकिन हमें टारगेट से ज़्यादा करना. देन मैटरनल मोर्टालिटी में वहाँ पे 7 0 था, यहाँ पे 7 बाद में आ रहा है 97. चाइल्ड डेथ में हम 4 इयर्स तक लेते हैं, और मैटरनल मोर्टालिटी रेट में हम डिनोमिनेटर में 15 to 49 ईयर्स मतलब रिप्रोडक्टिव एज लेते हैं. WHO says 8 visits, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1, then 2 and then 5. नाउ इट इज़ मनी टू आशा. तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में 250 रुपीज़ मिलते हैं फॉर ऑन डे 45, और यंग केयर में 1.5 साल पे मिलता है 250 रुपीज़. ठीक है, देन वी हैव आशा को हम रूरल और अर्बन करेंगे 600-400 मिलता है फॉर डिलीवरी. टू मदर इट इज़ डिफरेंट इन हाई परफॉर्मिंग स्टेट एंड इन लो परफॉर्मिंग स्टेट. तो हम बस एक सीक्वेंस में याद करेंगे 6 7 10 14. ठीक है, 6 7 10 14. देन वी हैव मतलब 9th of every month प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. So 9th of every month we have free ANC checkup at every hospital. Blue is for PIH, red is for emergency, green is normal, and in yellow we have other things like diabetes, etc. Then we have Ma is for breastfeeding. Then we have प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना. इसमें 3 हमें मनी याद रखनी है. फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ANC एट 6 months 3000 रुपीज़. फर्स्ट डोज वैक्सीन रुपीज़ 2000, एंड इफ सेकेंड इज़ गर्ल रुपीज़ 6000. ठीक है, देन जो हमारा RKSK किशोर वाली योजना, उसमें वी हैव प्रोग्राम साथिया. देन वी हैव आयरन फॉलिक एसिड का डोज क्या होता है, तो एक जो हमें अडल्ट मतलब याद रखना है, एडोलेसेंट मतलब 9 साल से ऊपर वालों के लिए, सभी के लिए वी हैव 60 मिलीग्राम एंड 500 माइक्रोग्राम वीकली. ठीक है, और ये एडोलेसेंट के लिए ब्लू है, और उससे ऊपर भी हैव रेड. ठीक है, देन वी हैव इससे नीचे मतलब 5 से 9 साल, वो जाएगा 45 और 400 वीकली इन पिंक. देन वी हैव उससे छोटे 6 months to ऑलमोस्ट 5 years, इट इज़ 20 और 100 bi-weekly. ठीक है, नाउ वी हैव अक्यूट मालन्यूट्रिशन. अक्यूट में भी से वेस्टिंग, वेट बाय हाइट. क्रॉनिक में भी से स्टंटिंग, हाइट बाय एज. कंबाइंड इज वेट बाय एज.
देन सॉल्टर स्केल अगर 3 साल से कम हम मंथली करते हैं और उसके बाद हर 3 महीने में एक बार करते हैं. देन न्यूट्रिशनल रिहैब सेंटर में वी हैव 3 phases: स्टेबलाइजेशन, ट्रांजिशन एंड रिहेबिलिटेशन. इट इज़ 1 to 2 days एंड 2 to 3 days, 2 दिन का है. और स्टेबलाइजेशन में वी गिव F75.9 ग्राम प्रोटीन, देन F100 जिसमें 2.9 ग्राम प्रोटीन होता है. रिहैब में देयर शुड बी नो एडिमा एंड मोर देन 90% फीड एक्सेप्ट होनी चाहिए. देन यूनिसेफ की वी हैव गोबी FFF कैंपेन, वी हैव ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फर्टिलिटी, लिटरेसी एंड फूड. देन वी हैव सास प्रोग्राम फॉर निमोनिया एंड इसमें हमें रेस्पिरेटरी रेट याद रखना है. 2 महीने से 2 साल 50 एंड 2 महीने से 1 साल 50 एंड 1 से 5 साल 40. देन वी हैव इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. सो इट कवर्स 12 डिसीजेस. बर्थ पे वी हैव Hep B, OPV एंड BCG. देन वी हैव 6, 10, 11 पे OPV, रोटा एंड पेंटा. ठीक है. और 6 और 14 और 9 मंथ्स पे FIPV और PCV. देन 9 मंथ्स पे MRG विटामिन A और इसी का सेकेंड वाला एट 60 MR और JE का सेकेंड वाला एट 16 to 24 मंथ्स. एंड देयर वी हैव DPT1 का बूस्टर. देन 5 years पे DPT का 2 बूस्टर. देन साइड तो मोस्टली हमें सब याद रखना है. लेफ्ट थाई पे, राइट अपर आर्म पे वी हैव MR, जिसके नाम में आर आ रहा है MR. एंड वी हैव FIPV का फर्स्ट एंड सेकेंड डोज. थर्ड इज ऑन लेफ्ट अपर आर्म विद BCG. एंड लेफ्ट थाई इज ओनली फॉर नहीं, राइट थाई इज ओनली फॉर PCV. ठीक है. थिंग्स ऑन द वैक्सीन. सो सबसे पहले पेंटावेलेंट में वी हैव DPT एंड HH. तो diphtheria is toxoid, pertussis is killed, tetanus is toxoid, HIB is conjugate, Hep B is recombinant. Now pertussis can cause uncontrollable cry and CNS deficit, and it is contraindicated in developmental delay and epilepsy. So if something is present, we'll give Tdap, which has acellular pertussis. Rotavirus vaccine can cause intussusception. Then TD can cause brachial neuritis. Now, what are the solvents for BCG? TB is very normal, so NS. For MR we have water. So MR is very like सब चीज़ में contraindicated कर देता है, तो it is very good on its own, तो सिर्फ water चल जाएगा. It is contraindicated in neomycin allergy. Now for JE, in killed we got nothing to add. In live we add phosphate. Then we have day carrier vaccine. इसमें we have 4 to 6 ice pack multiplied by 4, almost 16 to 20 vials. Then we have cold box. इसमें we have 16 to 20 ice packs and up to 300 vials. Then we have ice lined refrigerator, which should have 8 hours electricity in a day. Then deep freezer and then work in cold room. Okay, so now we have freeze sensitive and heat sensitive. For heat sensitive, we'll remember bomb. We have reconstituted BCG, and at last we have BCG. In between we have OPV and MR, तो bomb. Other all are free sensitive, लेकिन order में करें तो most is Hep B. We have HP and D, Hep B, Penta, PCV, DPT or TD. Then contraindicated to open vial, we have BMR, BCG and MR. The factor we have already done. And immunized, when we'll say fully immunized, we have 1 year. 1 साल की सारी वैक्सीन मिल चुकी है. एंड कम्प्लीटली इम्यूनाइज्ड है तो 2 साल तक की सारी वैक्सीन मिल चुकी है. लेकिन वी इवेलुएट एट 5 years, तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा, तो बेटर इज़ फुल्ली इम्यूनाइज्ड. देन मातृवंदना वी हैव डन. देन TB का गोल क्या है? इंसिडेंट शुड बी decreased by more than 80% and death by 90%. Then we have resistance के बारे में. पॉली ड्रग रेजिस्टेंस हम कब बोलेंगे? अगर H और R के अलावा भी 2 ड्रग से रेजिस्टेंस है तो पॉली ड्रग रेजिस्टेंट.
ठीक है, तो इसमें वी हैव शॉर्टर रेजिमेन एंड लॉन्गर रेजिमेन. लॉन्गर में वी हैव बी पाम 6 months का. देन वी हैव अगर सिर्फ एच इसमें इंक्लूडेड होता है तो MDR बोलते हैं. देन वी हैव पोली रेजिस्टेंस. और अगर HR प्लस फ्लोरोक्विनोलोन्स प्लस ग्रुप A से भी रेजिस्टेंस है तो XTR. देन वी हैव टोटल ड्रग रेजिस्टेंस अगर फर्स्ट और सेकेंड लाइन दोनों में रेजिस्टेंस हो गया है तो. ठीक है. देन वी हैव TB का स्पेशल स्टेन इज ऑर्डामीन एंड रोडामीन. देन लॉस ऑफ फॉलोअप कब करेंगे अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है. देन पीपल लिविंग विद HIV किसको बोलेंगे अगर मतलब 3 महीने में वीकली मिल रहे हैं या फिर 13 साल से ज़्यादा साथ में रह रहे हैं. ठीक है, और उसमें भी 1 महीने डेली मिल रहे हैं. तो अगर 5 साल से कम का कांटेक्ट है तो CB नाट करेंगे, उससे ज़्यादा हो गया तो मॉन्टू करेंगे. ठीक है. और देन वी हैव प्रोफाइल एक्सेस. क्या होगा बाकियों के लिए अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ आइसोनाइजेट देंगे 6 महीने के लिए रोज़ एक गोली. और जो हमारा लेप्रेसी था उसका प्रोफाइल एक्सेस क्या था रिफेम्पिसिन की टैबलेट सिंगल डोज. देन अभी दोबारा से हम आते हैं इंसेंटिव्स पे फॉर TB. अगर बताया कि TB है तो 500 और जो दवाई दे रहा है उसको 500. ठीक है, और निक्षय के अंदर देते हैं हम 1500 हर 3 महीने में. तो टोटल वही हो गया कि 1 महीने का 500. देन अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट करा लिया और सेंसिटिव था तो 1000 और अगर रेजिस्टेंस था तो 5000. नाउ वी हैव HIV. HIV में अडल्ट्स में हम क्या करते हैं PCR या वेस्टर्न ब्लॉट. और चाइल्ड में हम क्या करते हैं RT-PCR. ठीक है. उसके अलावा ये तो था डायग्नोसिस के लिए. स्क्रीनिंग के लिए वी डू अलाइजा, रैपिड टेस्ट या ड्राइड ब्लड स्पॉट टेस्ट. और विंडो पीरियड में P24. वेरिएंस क्या होता है x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. देन वी हैव नेस्टेड केस कंट्रोल. इसमें पहले हम कोहोर्ट करते हैं फिर उसी में से केस और कंट्रोल निकाल लेते हैं. देन टेस्ट सीरीज़ में होगा तो सेंसिटिविटी कम होती है, पैरेलल में स्पेसिफिसिटी कम होती है. ना प्रेवलेंस किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है PPV को. लाइकलीहुड रेशियो क्या है पॉजिटिव आने का सेंसिटिविटी बाय 1 माइनस स्पेसिफिसिटी और नेगेटिव आने का 1 माइनस सेंसिटिविटी बाय स्पेसिफिसिटी. तो हम पॉजिटिव को याद करते हैं. तो पॉजिटिव वाले में वी हैव सेंसिटिविटी ऊपर 1 माइनस स्पेसिफिसिटी नीचे. ठीक है, ट्रू पॉजिटिव सेंसिटिविटी में आता है तो ऊपर. नेगेटिव वाले को हम उल्टा कर देंगे, ऊपर 1 माइनस सेंसिटिविटी आएगा, नीचे स्पेसिफिसिटी आएगा. सैम्पल साइज़ क्या होता है Z² PQ बाई E². स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. फ्रीडमैन इज़ नॉन पैरामीट्रिक. नॉर्मैलिटी के लिए 3 हमें नाम याद करना है बॉक्स विस्कर, प्लॉट हिस्टोग्राम, शपीरो विल्क. देन कापा वैल्यू 0 इज़ नो एग्रीमेंट, 1 इज़ परफेक्ट. और ये कापा वैल्यू का ये फार्मूला है P0 माइनस PE बाय 1 माइनस PE. देन वी हैव ये हमारा इशिकावा या फिशबोन डायग्राम होता है. देन रीऑर्डर फैक्टर हम कैसे करते हैं कितना करना है एवरेज मंथली कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय रीऑर्डर फैक्टर माइनस में स्टॉक अवेलेबल. देन लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में लैक्टेशन में क्या ज़्यादा चाहिए होता है कैल्क से हम याद करेंगे कैल्शियम, विटामिन A, विटामिन C. हाई फैट डाइट का बोलेंगे जब ऑलमोस्ट 1000 किलो कैलोरी फैट से आ रहा है. DDT का क्या है कॉन्सेंट्रेशन 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर. एक्सपायर्ड वैक्सीन को हम येलो डब्बे में फेंकते हैं. देन वी हैव ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे किसके लिए करते हैं फलेरिया के लिए. और मलेरिया वेक्टर इंडेक्स में क्या क्या आता है मैन बाइटिंग रेट, इनोकुलेशन रेट, ह्यूमन ब्लड इंडेक्स. लेप्रेसी की कीमो प्रोफाइल एक्सेस कब करते हैं अगर 6 महीने से ज़्यादा का कांटेक्ट है या 20 घंटे पर हफ्ते से ज़्यादा का कांटेक्ट है. हेडसेस फॉर अडोलेसेंट. देन अगर डॉग बाइट है, वैक्सीनेटेड है और स्प्लेनेक्टमी हुई है तो क्या देते हैं अमॉक्सिक्लेव क्योंकि किसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कैप्नोसाइटोफाज के. देन नंबर नीडेड टू ट्रीट क्या होता है 1 बाय ARR. ARR क्या होता है क्योर रेट एंड ट्रीटमेंट माइनस में कंट्रोल. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ART. So in this we have different age groups and weight groups.
तो हमें बीच वाला याद करना है 6 to 10 years and 20 to 30 kg. So we can remember by 5, 10, 20, 30. ठीक है, तो बीच वाले में भी have ALD और उससे ऊपर में A को T से रिप्लेस कर दिया तो TLD, एंड उससे नीचे वाले में AL है, D को रिप्लेस कर दिया बाय LPV. ठीक है, नाउ वी हैव प्रोफाइलेक्सिस. हम किसकी कब करेंगे? मार्क की कब करेंगे? जब 50 से कम है CD4. PCP की करेंगे अगर 350 से कम है, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो डिसकंटिन्यू कर देंगे, और 2 ओकेजन्स पे होना चाहिए 6 months अपार्ट. प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में वी हैव T plus M3-citabine and T is contraindicated in renal failure. Now we have malaria. So for malaria we have various formulas. First we have annual parasite index. It should be less than 1. Then we have ABO, blood examination rate. It should be more than 10%. Okay, these two are for malaria. Then we have for microfilaria. It should be also less than 1%. It is for slides. ABOR is for slides and API is for impact by burden into 1000. ठीक है, then we have slide positivity rate. It is for outbreak. So in malaria we have everything multiplied by 100 except API, for which we have 1000. Then we have treatment of malaria. So for Vivex we have chloroquine and primaquine, 25 and 0.25 mg per kg. Chloroquine is for 3 days, 10, 10, 55 ऐसे हम 25 पूरा करेंगे, और primaquine is for 14 days. Then we have falciparum. We have ACT for 3 days and in जिसमें SP is given on only day 1. ठीक है, then we have primaquine. अभी हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ day 2 पे देना है तो 0.75 हो जाएगा. इसमें AST में A was 4 mg per kg. Then S is again 25, which is same as chloroquine, and P is all 1.25, तो ऑलमोस्ट अब सेम है. A है 4 और AL में भी है 20 and 120. ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वी गिव क्यूनिन सोल्ड फॉर 7 days. देन वी हैव प्रोफाइलेक्सिस में अगर 6 हफ्ते से कम है तो डॉक्सी, एंड अगर उससे ज़्यादा है तो मेफ्लो. डॉक्सी इस 2 दिन पहले से 4 हफ्ते बाद तक, और मेफ्लो इस 2 हफ्ते पहले से शुरू करेंगे. देन वी हैव जापानीज एनकेफेलाइटिस. ह्यूमन इज टेडेंट, पिग एम्पलीफाई एंड आर्डाइट बोट्स आर मेंटेनेंस. इसमें वी हैव लाइफ में वी हैव SA 14-14-2 स्ट्रेन, एंड किल्ड में वी हैव कोलार. और किल्ड फॉलो ओपन वायल पॉलिसी, और लाइफ नहीं करती थी, एंड इट इज़ फ्री सेंसिटिव. देन वी हैव कालाजार बाय लिशमैनियासिस, सैंडफ्लाई और फ्लीबॉटमस argentipes. Then we have filariasis, which is Bancroftian or Brugian. Brugian is by Mansonia, Bancroftian is by Culex. Then infective stage is L3. We give DEC 12 doses at 6 mg per kg per dose, और इसकी हाइपर सेंसिटिविटी को बोलते हैं मेजोटी रिएक्शन, तो फील मेजोटी. एंड प्रोवोकेशन के लिए वी गिव 100 mg. देन मास ड्रग प्रोफाइलेक्सिस में वी गिव DEC एंड एल्बेंडाजोल 2 साल से बड़े बच्चों को, और आइवोमेक्टिन वी गिव 5 साल से बड़े बच्चों को. तो 3 चीज़ें हम देते हैं. देन वी हैव डेंगी. तो मोस्ट कॉमनेस्ट 2 टाइप 2, एंड इसमें टॉर्निके पॉजिटिव कब बोलेंगे? अगर 20 से ज़्यादा है. शॉक कब बोलेंगे? शॉक के क्राइटेरिया में प्लेटलेट्स नहीं आते. BP अगर 90 से कम है, और इन्वेस्टिगेशन में अगर 5 दिन से कम है फीवर तो NS1, उससे ज़्यादा है तो IgM ELISA. ठीक है, देन एडीज है. एडीज का इंडेक्स क्या है? लेस देन 1 विद इन 400 मीटर ऑफ ट्रेवल. एंड देन वी हैव ब्रॉटयू इंडेक्स. इसमें कंटेनर्स आ जाएंगे, तो एडीज़ के लिए वी हैव ब्रॉटयूज इंडेक्स, ये हमें याद करना है. देन वी हैव एनोफिलीज. ठीक है, ये सभी में डिफरेंस है मस्किटोज़ में. देन वी हैव स्पेस स्प्रे. स्पेस स्प्रे में आता है हमारा सिंथेटिक पायरिथ्रोइड्स, तो स्पेस के SP से सिंथेटिक पायरिथ्रोइड्स. देन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कितने किलो कैलोरीज पर ग्राम होता है. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वी हैव 4, फैट वी हैव 9, फाइबर वी हैव 2, अल्कोहल वी हैव 7.
ठीक है। तो फैट माइनस फाइबर इज अल्कोहल। देन ये है हमारे कितनी कैलोरीज चाहिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि फ़ीमेल और मेल ये हमारा सेडेंट्री है ऑलमोस्ट 1700 और ऊपर 2100 है। तो 17 इधर हम क्या ऐड करेंगे 500 600 और ऊपर 600 700। देन वी हैव डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट। तो ये सारा हम उस पे आ रहे हैं नाइट्रोजन वाले पे। तो डी सी इज़ एक्सटर्नल। इसमें क्या आता है, अब क्या है कि ये जो दो हमारी चीज़ें हैं डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट और बायोलॉजिकल वैल्यू, इसमें हमें अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब तो लाना है। ऊपर आएगा डी में, नीचे आएगा बी में, ठीक है। तो बी क्या है, डी से पहले आता है। तो अगर पहले आता है तो ये और किसी को भी ऊपर नहीं रखने देगा, तो ये अमीनो एसिड को नीचे आएगा और उसमें ऊपर आएगा। तो डाइजेस्टिबिलिटी के नीचे एक्सटर्नली हमें क्या मिलता है प्रोटीन, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। और इंटरनली बायोलॉजिकली अंदर क्या होता है अमीनो एसिड, तो उससे हम इसको मतलब नाइट्रोजन है अंदर तो नाइट्रोजन को ऊपर लेकर आएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन विच इज़ हाईएस्ट फॉर एग विच इज़ 96%, बेस्ट इज डियास। देन वी हैव वेरियस बी वाइटामिन, इन सबके हमके नाम करने हैं। वी हैव थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पेरोडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक एंड मिथाइल कोबालामीन। ई की डेफिशिएंसी से वी हैव डर्माटाइटिस एंड इनफर्टिलिटी। देन वी हैव वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी ज़ेरोफ्थेल्मिया। डेफिशिएंसी में हम कब देते हैं वाइटामिन ए 0 1 14 डे पे। और एन से नाइट ब्लाइंडनेस, 1A ज़ीरोसिस, 1B बिटॉट स्पॉट्स, 2 में वी हैव कॉर्नियल ज़ीरोसिस, देन वी हैव अल्सर एंड 3B में वी हैव केराटोमलेशिया। 3 इज़ इरिवर्सिबल। वी हैव एंडेमिक असाइटिस which is caused by pyrrolizidine in millets and is prevented by sieving. Then we have neural atheism which is upper motor neuron palsy. इसमें we have 5 classes. First is normal, second में no stick required, first third में 1, fourth में 2 and fifth is Crollo. Then cooked के लिए we have FSSAI mark, raw के लिए we have egg mark, international we have Codex Alimentarius. Then regarding polio, we have vaccine derived and vaccine associated. Derived was from P2 and associated was from P3. Derived वाला वायरस के म्यूटेशन से था तो अब उसको OPV से निकाल दिया गया है, और associated वाला हॉस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स पे था। नाउ ये क्या है कि अगर कोई केस आया उसको रिपोर्ट करना है, विदिन 2 days पहला स्टूल का सैंपल ले लेना चाहिए, देन विदिन 14 days दूसरा ले लेना चाहिए, और ये 3 दिन में लैब में पहुंच जाना चाहिए, और 60 days के बाद रेजिडुअल पैरालिसिस चेक होता है। इंडिकेटर क्या है, इम्पैक्ट का सेंसिटिविटी है, देन ऑपरेशन का कि 80% याद रखना है बाकी सब में। देन वी हैव विजुअल, 2 है, एक तो ब्लाइंड है और एक कम होना है। कम होना है 6/18, ब्लाइंड इज 3/60। लेस देन 50 ईयर्स मोस्ट कॉमन कॉजेज नॉन ट्रेकोमेटोड कॉर्नियल ओपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लेप्रोसी की ट्रीटमेंट। तो पहले वी विल सी अडल्ट वाली मोर देन 14 ईयर्स, रिफेम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफाजामिन। रिफेम्पिसिन इज 600 mg मंथली, डेप्सोन इज 100 mg डेली, क्लोफाजामिन इज 50 mg डेली लेकिन 300 mg मंथली। नाउ 10 to 14 ईयर्स में ये हो जाएगा 450, 50, 150 एंड 50, ठीक है। ऑलमोस्ट अब हाफ हो रहा है। क्लोफाजामिन रोज़ वाला ऑल्टरनेट डे हो रहा है तो वो भी ऑलमोस्ट हाफ ही हो रहा है, बस रिफेम्पिसिन 450 हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव ये कोई वो है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के लिए वे सपना, यूएन के लिए वे मीना। देन देर इज़ न्यू वैक्सीन MIP, ओल्ड वॉज MW। सर्जरी के लिए 8,000 to 12,000 रुपीज़ मिलते हैं। देन वी हैव गोइटर में गोल इज़ लेस देन 5% होना चाहिए। पोटेशियम आयोडेट हम मिलाते हैं सोल्ट में। देन लॉन्ग टर्म में हम गोइटर का रेट देखते हैं। देन प्रोसेस के लिए आयोडीन देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी के लिए यूरिन आयोडीन रेट देखते हैं। वी हैव IDSP
Then we have obesity. इसमें we include waist circumference. Then we have SFT and then we have waist hip ratio. ठीक है. Then RBSK में कितने डिसीजेज आते हैं? 32. पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, इसमें मिड डे मील आता है, 8th क्लास तक मिलता है. वी हैव कैलोरीज एंड प्रोटीन्स प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए. प्राइमरी के लिए हम पहले याद करते हैं, प्रोटीन हमें बार बार देना पड़ता है तो 12 और कैलोरीज इज़ 450. इसको हम उसके बाद जो अपर प्राइमरी है, प्रोटीन के 1 to 2 से 20 हो जाएगा और कैलोरीज हो जाएंगी हमारी 450 का डबल तो हो जाए 900, लेकिन ये नीचे 2200 काट रहे हैं 700. देन ये क्या है कि ऑर्गेनिज्म जब आया तो साइन एंड सिम्टम आने तक हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है. और NCDs में लेटेंट पीरियड. अब पहला केस आया, बाकी केस आएंगे, तो ये है सीरियल इंटरवल. इसमें वी हैव क्वारंटाइन करते हैं जब तक साइन एंड सिम्टम नहीं आते, और जब तक वो कम्युनिटी में नहीं जाता इट इज़ जनरेशन टाइम, जिसमें हम आइसोलेशन करते हैं, कम्युनिकेबल रहता है तब तक वो. इंक्यूबेशन पीरियड सबसे कम है मीज़ल्स का 1 से 2 हफ्ता, फिर रूबेला का 2 से 3 हफ्ता, फिर चिकन पॉक्स, तो MR चिकन. देन रिजर्वायर में रहता है पैरासाइट, देन मल्टीप्लाई करता है, लेकिन सोर्स से ट्रांसमिट भी होता है. हर चीज़ में मैन को हमें सेकेंडरी होस्ट लिखना है, लेकिन हर चीज़ में मैन को प्राइमरी होस्ट लिखना है, सेकेंडरी किस में है? मलेरिया और हाइड्रेटेड में. ठीक है. और बाकियों में सेकेंडरी कौन है? फिलेरिया में क्यूलिक्स, कीनिया में साइक्लोप्स और हाइड्रेटेड में शीप, कैटल और मैन. देन सब क्लिनिकल केसेस कैन नॉट ट्रांसमिट. हेल्दी कैरियर्स किस में मिलते हैं? DPT, कॉलरा, मेनिंजाइटिस. सेकेंडरी अटैक रेट क्या है? सेकेंडरी केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन माइनस प्राइमरी केसेस इंटू 100. देन 3 साइकिल्स है, प्रोपेगेटिव, साइक्लो प्रोपेगेटिव एंड साइक्लो डेवलपमेंटल. ना प्रोपेगेटिव में सिर्फ नंबर बढ़ता है, साइक्लो डेवलपमेंटल CD में सारे S बढ़ते हैं, और साइक्लो प्रोपेगेटेड इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा. नाउ जिसमें सब कुछ है, मतलब कि सबसे क्वीन वो क्या है? प्लाज्मोडिया. जिसमें सिर्फ नंबर बढ़ता है वो क्या है? हमारे मतलब सब बोलते रहते हैं, सब नंबर बढ़ाते रहते हैं, याप करने वाले, तो येलो फीवर और प्लाग. बाकी जिसमें साइक्लो डेवलपमेंटल, मतलब जो सब साइकिल में चलते रहते हैं छोटे छोटे लोग, माइक्रोफाइलेरिया. ठीक है. माइक्रो साइकिल में चलते हैं, मतलब जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं वैसे माइक्रोफिलेरिया, साइक्लो डेवलपमेंटल. नेक्स्ट वी हैव डिफ्थेरिया. तो केसेस के लिए वी गिव आई इंट्रामस्कुलर प्रोकेन पेनिसिलिन. कैरियर्स के लिए भी एरिथ्रोमाइसिन, और कॉन्टैक्ट के लिए भी एरिथ्रोमाइसिन, लेकिन साथ में DT भी दे देते हैं. देन वी हैव चैंडलर इंडेक्स, इट इज़ फॉर हुकवर्म. तो पहले हमने एक एडीज का इंडेक्स कर लिया, ब्रॉटोज इंडेक्स. अब हुकवर्म का है चैंडलर इंडेक्स. नाउ AQI हमें 3 चीज़ें याद करनी है, 100, 200, 400, गुड, पुअर, सीवियर. देन क्लोरीनेशन किस में इनफेक्टिव होती है? हेप A और पोलियो में. ठीक है. तो कैप से याद करेंगे क्लोरीनेशन, हेप A और पोलियो. देन सॉफ्ट वाटर कब बोलेंगे? 1 मिलीक्विलेंट से कम होने चाहिए सॉल्ट्स. और बेस्ट क्या है? परम्यूटेड मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड. नेक्स्ट वी हैव 2 तरह के सैंड फिल्टर होते हैं, रैपिड और स्लो. रैपिड में वी हैव सैंड बेड, स्लो में एक लेयर बन जाती है, स्मूथ या जूग्लियर लेयर. एक इंसान को कितना एरिया चाहिए? 70. और मतलब कितना से कम होगा कि हम ओवर क्राउडिंग बोलेंगे. एक के लिए 70, 2 के लिए 100, और बाकी सब के लिए हम 40 पर पर्सन ऐड करेंगे. तो 70, 100, 40, 70, 100, 40. ये 3 इंडेक्स है, HDI, PQLI और GHI. तो HDI इज़, हम पहले करेंगे HDI और PQLI करेंगे. तो जो छोटा है वो एट बर्थ है और बड़े वाला एट 1 ईयर है. तो HDI में वी हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, PQLI में 1 ईयर. HDI में स्कूल के ईयर्स देखेंगे और उसमें थोड़ी बड़ी चीज़, मतलब लिटरेसी रेट. अभी छोटी वाली चीज़ें हमसे पैसों को देखना है, छोटी चीज़ तो GNI आ जाएगा. और बड़ी चीज़ें की मोर्टालिटी देखो, IMR. ठीक है. और हंगर इंडेक्स में सारे MM आते हैं अंडर 5 के लिए, मोर्टालिटी, अंडर न्यूट्रिशन,
और अंडरवेट। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो रेंज आती है दैट इज़ 20 to 85। देन वी हैव 3 टर्म्स, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो अगर कोई एनाटॉमिकल ऑर्गन या फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं हो रहा है तो इम्पेयरमेंट, कोई एक्टिविटी या वर्क नहीं हो रहा है तो डिसेबिलिटी, और अगर जॉब नहीं है तो हैंडीकैप। देन ओवरऑल या कंट्री डेवलपमेंट के लिए वी हैव IMR, और बाकी सब चीज़ों के लिए वी हैव अंडर 5। देन वी हैव स्केल्स, तो अर्बन के लिए वी हैव कुपुस्वामी, रूरल के लिए वी हैव उदय पारेख, और दोनों के लिए वी हैव PJ प्रसाद। देन वी हैव हेडन मैट्रिक्स, ये इंजरी प्रिवेंशन के लिए है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, और वी हैव दनीदा फॉर ब्लाइंडनेस प्रोग्राम। नेक्स्ट वी हैव न्यूमोकॉनियोसिस, ऑल आर नोटिफाइबल एक्सेप्ट बेगासोसिस। देन वी हैव कितना साइज, जैसे अगर 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा तो ऊपर ऊपर रहेगा, 3 to 5 में नीचे आएगा, 1 to 3 में एल्वियोलाई में जाएगा। देन लेड कॉजेस पर्टोनियंस लाइन, स्क्रीनिंग के लिए हम यूरिन का लेवल देखते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड का लेवल देखते हैं। देन PMJ के अंडर वी गिव 5 लाख पर फैमिली। देन ओटावा में जो डिक्लेरेशन थी उसमें पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया गया था। देन वी हैव ESI में एम्प्लॉयर कितना देता है और एम्प्लॉय कितना देता है, 3.25 और 0.75, और कितने से कम इनकम होनी चाहिए, 21,000 रुपीज़। देन वी हैव सिकनेस, एक्सटेंडेड सिकनेस एंड एनहांस सिकनेस, वी हैव 70%, 80% एंड 100%। ठीक है, 7 days फॉर वेसेक्टमी एंड 14 days फॉर ट्यूबेक्टमी, एनहांस में आएगा। मैटर्निटी लीव इज़ फॉर 26 weeks। नाउ 2 कमिटीज़ है, तो चड्डा गेव मलेरिया वर्कर्स एंड करतार गेव MPW मेल मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, मतलब चड्डा से चद्दर याद करेंगे। चद्दर हमें क्यों लेनी पड़ती है, मच्छरों से बचने के लिए, और सबसे ज़्यादा क्या वो करता है, मलेरिया। और करतार मतलब करता क्या है, काम करता, तो वर्कर, मल्टी काम करता। देन डाइट में फ़ैट कितने होने चाहिए, 20 to 30%, सेचुरेटेड 10%, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 100 से कम, सोल्ट होनी चाहिए 5 से कम, 100 मिलीग्राम 5 ग्राम। ठीक है। देन वी हैव केस इज़ हिज ओन कंट्रोल इन केस क्रॉस ओवर स्टडीज़। ठीक, क्रॉस ओवर हो रहा है, खुद ही सब करना पड़ रहा है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के लिए कौन सा क्वालिटी चेक कंट्रोल होता है, मूस इज़ फॉर ऑब्जर्वेशन, 2 O आ रहे हैं। कैप्लन मियर में क्या होता है हमारा, हॉल वेलनर बैंड।